Hello students, this is the class 12th and subject is political science. You all are welcomed in the online lecture. Students, today we will deal with the book number 8, Contemporary World Politics. This video already consisted two parts. The very first part is delivered to you and in this part we have discussed the United Nations. अभी तक हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन्स को डिस्कस किया. सो आई एम गिविंग अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वट एवर वी हैड डन इन द प्रीवियस वीडियो. Actually, the United Nations, this is the world organization. Its main aim is to promote peace, cooperation and maintain discipline among the world countries, and major work is to avoid the war. In this United Nations first video, we have discussed the major organ like General Assembly, United Nations Security Council. These two organs are very important, especially the Security Council. This Security Council is having 15 members and 5 permanent members. 10 members are the non-permanent. This Security Council is responsible to maintain the security over all the world countries. See, these permanent members, they are having the special power that is known as a veto power. These permanent members are US, Russia, France, China and the UK. And students, today we are going to start the second part. In this second part, we will deal with the special topics like UNESCO, UNICEF, WHO and IL. Students, these are the major agencies of United Nations. Okay, actually in the book, NCERT book, many organizations, many agencies are given here, but according to the updated syllabus, the latest syllabus of CBSE, we have to deal with these 4 agencies. Listen it once more. These major agencies according to updated syllabus, number 1 is UNESCO, second UNICEF, third one is WHO, fourth is IL. So let's start the explanation of each one. First of all, we will deal with the UNESCO. This is a very specialized agency. See the logo of the UNESCO. As the name refers us, United Nations means United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. इस ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट स्पेशल थिंग क्या है कि ये सारी चीज़ें जो एजुकेशन है, साइंस है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीज़ें इस एजेंसी से रिलेटेड है. सो यूनेस्को का मेन वर्क क्या है, इसका मेन मिशन क्या है? टू कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग ऑफ अ कल्चर ऑफ पीस, द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरकल्चरल डायलॉग थ्रू द एजुकेशन, द साइंसेस, culture, communication and information. Means this organization is very important organization. It includes many work in many fields. इसमें सारे एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड, साइंस से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड सारे फील्ड इसमें आ जाते हैं. और इसका मेन मोटिव क्या है कि वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं, जो इसके डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनमें जो कल्चर है, सारे कल्चर को एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, इंटर कल्चरल जो डायलॉग है वो उसको मेंटेन करना है. और इसके लिए एजुकेशन, साइंस, डिफरेंट कल्चरल कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन, ये सारी टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं टू मेंटेन एंड डिस्कस द कल्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. दिस इज डन बिकॉज if we want to have the close relation with the other countries, first of all we need to understand their culture. If we respect their culture, we can understand their culture, we can have good relationship. If we are having good relationship, then the country will have more cooperation and more progress. The very next is UNICEF. You must understood by seeing the picture, its main target is to care the children. Now see the UNICEF. It is for every children, those who are in danger. Actually, this organization of United Nations, it was set up on 11 December 1946. Okay, this is the UNICEF main. This is the main organization that meets the emergency needs of the children. Why the emergency needs of the children?
एक्चुअली ड्यूरिंग द वॉर, जो हमारी वर्ल्ड वॉर हुई है, वर्ल्ड वॉर के बाद जो चिल्ड्रन की, उनकी मदर्स की कंडीशन है, स्पेशली वॉर जो यूरोप में हुई है, चाइना में हुई है, उसके बाद चिल्ड्रन की वेलफेयर के लिए, उनके ब्रॉटअप के लिए यूनाइटेड नेशन वरीड अबाउट दैट एंड इट एस्टैब्लिश्ड अ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज यूनिसेफ। सो इस फुल नेम इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। लिसन इट अगेन, यूनाइटेड नेशंस International Children Emergency Fund. Okay students, keep it remember. This organization, it does the work of welfare related to the children overall the world country, those who are in danger, those who face any type of emergency. So its main functions are to provide services in primary health care. जो बच्चों की मेन, उनकी शुरुआत में जो उनके बच्चों को ब्रॉटअप करना है, उनके चाइल्डहुड से उनके हेल्थ को प्रॉपर केयर करना, उसके लिए वैक्सीनेशन देनी है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बेसिक एजुकेशन देनी, सैनिटेशन, विमेंस की डेवलपमेंट के लिए, उनकी मदर्स की डेवलपमेंट के लिए, ये सारे पॉलिसी प्लान डिस्कस होते हैं। नॉट ओनली डिस्कस्ड, एक्चुअली दीज आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय द मेंबर कंट्रीज। हर कंट्री अपने बिहाफ पे, अपने कंट्री के इंटरनल जो उसके डिसीजंस हैं, that will be taken on the behalf of UNICEF। मतलब हर कंट्री यूनिसेफ के अंडर अपने कंट्री के छोटे बच्चे, उनकी मदर्स, उनकी केयर के लिए, उनके प्रॉपर पोषण न्यूट्रिशन के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, this is the specialized agency of the United Nations, okay? And it is responsible for the international public health। ये पूरे वर्ल्ड के लोगों की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए टेक्निक प्रोवाइड करती है, वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करती है, और उसके लिए हर कंट्री दूसरे जो अफेक्टेड कंट्रीज है उसकी हेल्प के लिए रेडी रहती है। सो इट प्रोवाइड्स अ टेक्निकल असिस्टेंस टू द कंट्रीज, सेट्स इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस एंड कलेक्ट्स डेटा ऑन द ग्लोबल हेल्थ इशू थ्रू द वर्ल्ड हेल्थ सर्वे। एक पूरे वर्ल्ड में एक हेल्थ से रिलेटेड सर्वे होता है, प्रॉपर उसकी जानकारी सारी कलेक्ट करते हैं और उससे रिलेटेड रिसर्च करके मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम वर्क देखें तो इसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ, मतलब सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन है। उस सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इट एस्टैब्लिश द एजेंसीज ऑफ गवर्निंग स्ट्रक्चर्स, प्रिंसिपल एंड स्टेट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स एट द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। मीन्स जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके रूल्स रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग इसका मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन एम है, वो पूरे वर्ल्ड के लोगों की हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ को अटेन करते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में। इसके मेन 6 सेमी ऑटोनमस रीजनल ऑफिस में, मतलब मेन सेंटर के अलावा 150 रीजनल ऑफिस भी हैं पूरे वर्ल्ड में। और WHO इट वाज एस्टैब्लिश्ड by the Constitution on 7th April 1948। जो इसका रूल रेगुलेशन का डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसकी एस्टैब्लिशमेंट दैट वाज डन ऑन 7th April 1948। और ये पूरे हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उस डे को, जिस दिन ये बना था, एस्टैब्लिश हुआ था, 7 अप्रैल को भी कमेमोरेटेड एज द वर्ल्ड हेल्थ डे। उस दिन पर पूरे वर्ल्ड में हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। द फर्स्ट मीटिंग जो WHO की, जो इसकी असेंबली थी WHO की, उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 24 जुलाई 1948। स्टूडेंट्स सी द डिफरेंस, द वर्ड WHA, दिस इज द असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। जो WHO ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स रेगुलेशन लिखे, उसकी असेंबली का नेम है। जब ये असेंबली मिली, इसने हेल्थ से रिलेटेड अपने इश्यूज, जो लॉज और जो रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, वो इशू की। और इसकी जो पहली मीटिंग थी दैट वाज टुक प्लेस ऑन 24 जुलाई 1948। Now see the other work. Its work began in the earnest in 1951 following a significant infusion of financial and technical resources. Next is the WHO board mandate includes the advocating for universal health care, monitoring the public health risk, coordinating the responses to the health emergencies and promoting the human health and well-being। पूरे वर्ल्ड की ह्यूमन की वेलबींग, उनकी जो इमरजेंसीज अगर है हेल्थ से रिलेटेड, उनको सॉल्व करने के लिए ये वर्क करता है।
see, it also provides the technical assistance of the country, sets the international health standards and guidelines, and also collects the data on global health issues through the वर्ल्ड हेल्थ सर्वे। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, इस वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। ये इसका एक मेथड है, पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, उसका डाटा, उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास कैसे पहुंचती है, थ्रू द वर्ल्ड हेल्थ सर्वे। ओके, तो ये एक फोरम है, इसकी मीटिंग्स होती रहती हैं, डिस्कशंस होती रहती हैं, हेल्थ इशू से रिलेटेड इसकी जो मीटिंग है वो टाइम टू टाइम होती रहती है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द countries of the world. So students, now move to the next topic. Now next organization is International Labour Organization. It is also known as ILO. पूरे वर्ल्ड के जो लेबर्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए यूनाइटेड नेशन ने बनाई है। दिस इज द यूनाइटेड नेशंस मेजर एजेंसी फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क। काम करने वालों की दुनिया, मतलब जो लेबर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उनकी वेलफेयर के लिए कि उनको कितनी वेजेस मिलनी चाहिए, कैसी वेजेस मिलनी चाहिए, उनकी वर्क की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, दीज आर डिसाइडेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। इट सेट्स द लेबर स्टैंडर्ड, मतलब जो लेबर्स हैं उनके काम करने के स्टैंडर्ड फिक्स करती है। देन इट ऑल्सो प्रमोट द राइट एट वर्क, सब लोगों को काम मिलना चाहिए, राइट टू वर्क होना चाहिए, और उसको एनकरेज करती है कि डिसेंट एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सबको एक मौका मिलना चाहिए अच्छी कंडीशंस में काम करने का। इसके अलावा द एनहेंसमेंट ऑफ द सोशल प्रोटेक्शन एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डायलॉग ऑन वर्क रिलेटेड इशू। जो लेबर्स हैं और उनके जो ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन हो, और वो रिलेशन अच्छी कैसे हो सकते हैं, इफ़ द ओनर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लेबर। उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे, उसके रिलेटेड उनके जैसे उनकी इंश्योरेंस से रिलेटेड, या उनकी कोई इंजरी होगी, उनके साथ जो भी अच्छा डीलिंग करना है, उनको प्रमोशन देनी है, बोनस देना है। ओके, तो दीज थिंग्स आर बीइंग डन बिटवीन द ओनर एंटरप्रेन्योर और लेबर। तो इस टॉपिक पे जो भी हमारे लेबर्स वर्कर्स की वेलफेयर के लिए प्रोग्राम है, उनको देखते हैं हमारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सारे रूल्स भी इशू करता है, जैसे एक लॉ बना था मिनिमम वेजेस वर्क, और उनकी सेफ्टी के लिए भी वर्क करते हैं, उनकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन सेफ होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी उनमें आपस में मुद्दे होते हैं, कोई डिस्प्यूट होता है, उसको प्रॉपर डायलॉग से, वार्तालाप से, शांति से, पीसफुली उसको स्टॉप करना है और उसको सॉल्व भी करना है। सो स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के टॉपिक। होप आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे, and I suggest you to watch the video repeatedly, and these are very important and very easy topics. So students, we will soon there with the new video. Till that, stay fit and fine.